Now the topic is good agricultural practices. So the safety and quality of raw medicinal plant and their finished product really depend upon the factor that may be classified as intrinsic factor and the extrinsic factor. Intrinsic means their genetic factor, and extrinsic means like environments, collection method, cultivation, harvest technique, and the processing, transportation, storage, etc. Generally, the medicinal plants are collected from the wild population, and there may be chance of the contamination by other species of the plant through misidentification or through accidental contamination or maybe through intentional adulteration, and all of which may have unsafe consequences. So, safety and quality assurance measures are needed to overcome these problems. So, good agricultural practices have been recognized as an important tool for ensuring the safety and quality of the medicinal product and the medicinal plants. Good agricultural practices include a specific method which, when applied to agriculture and the cultivation of medicinal plants, which generate food and herb for consumers that are safe and healthy. The guidelines on good agricultural practices for medicinal plants describe general principles and also provide the technical details mainly for the cultivation of medicinal plant, and it also describes the quality control measures where applicable. Now, the need for good agricultural practices. So, why good agricultural practices are required? All of you know that the interest in traditional system of medicine and particular herbal medicines has increased substantially in both developed and developing countries in recent years. So there is a rise in concern about their safety. On this background, quality assurance and their quality control of herbal medicine still need attention. In order to ensure the safety, quality and efficacy of herbal medicines, World Health Organization had identified the importance of agricultural and their collection practices. So all of you that uh, in recent 2 decades the herbal medicines has increased substantially in developed and developing countries. So in this point of view, there is a need of their quality control and quality assurance. So in order to ensure their safety, quality, and efficacy, World Health Organization identified the importance of agriculture and collection practices. And the guidelines that help to common grower and also cultivator to increase the quality of their medicinal plant. Now, what is the objective of good agricultural practices? So, the main objective of these guidelines are contribute to the quality assurance of medicinal plant material that are used as a source for herbal medicines and which aim to improve the quality, safety and efficacy of the finished herbal products. मेनली हम लोग जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन करने के बाद फिर उससे जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो जब तक हम लोगों का रॉ मटेरियल प्रॉपरली सही नहीं होगा तब तक हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट उससे हम लोग बनाएंगे वो गुड क्वालिटी का नहीं होगा. सो देयर इज ए नीड for the proper good agricultural practices for the cultivation of medicinal plants and guide the formulation of national monograph for medicinal plants and the related standard operating procedures. और जो भी हम लोग प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए, जो भी हम लोग न्यू प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन की क्रिया क्या मोनोग्राफ होनी चाहिए. ये सभी चीजें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग
यूज कर सकते हैं। एंड इट आल्सो इनकरेज एंड सपोर्ट द सस्टेनेबल कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ गुड क्वालिटी in order to respect and support the conservation of medicinal plants। और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग जो भी कल्टीवेशंस करते हैं अपने मेडिसिनल प्लांट्स का, ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइंस जब हमारे पास होंगी तो हम उसका अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर सकेंगे। और कलेक्शंस की क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या हम लोग को मेजर्स कर लेना चाहिए कल्टीवेशन और कलेक्शन के समय, वो जब प्रॉपर गाइडलाइंस होगी तो उसको हम लोग फॉलो करते हुए अपने मेडिसिनल प्लांट्स की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उस मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्ट से जो हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी गुड क्वालिटी का होगा। नाउ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स। तो क्या क्या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए गाइडलाइंस हैं वो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स। जब तक हम लोग किसी भी प्लांट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को प्लांट का कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट्स की यदि हम लोग खेती कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि प्रॉपर वो मेडिसिनल प्लांट वो इस स्पीशीज का है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनके एडल्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। यदि हम लोग एडल्ट्रेट प्लांट की खेती कर लेंगे तो स्वाभाविक है, क्या कहते हैं, हम लोग ओरिजिनल जीनोम ड्रग नहीं ऑब्टेन करेंगे। इस तरीके से जब तक हमारे पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन नहीं होगा किसी भी प्लांट का, तब तक हमको उसकी खेती स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जब हमको प्रॉपर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पर्टिकुलर प्लांट इस पर्टिकुलर स्पीशीज का है एंड इट गिव द हाई क्वालिटी ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यील्ड, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, सो द स्पीशीज और द बॉटेनिकल वैरायटी, जैसे मैंने आपको बताया, that are selected for cultivation should be the same as that specified in national pharmacopoeia or other authoritative national documents of the indigenous country। So अगर हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्पीशीज हम लोगों ने सिलेक्ट की है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी नेशनल फार्माकोपिया उससे हमको मैच करना चाहिए। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। And in the absence of such national document, the selection of species specified in the pharmacopoeia or authoritative documents of other countries should be considered। और यदि आप इंडिविजुअल कंट्री नहीं तो हम लोग अदर कंट्री को हम लोग फार्माकोपिया कंसीडर करते हैं। एंड इन द केस ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिनल प्लांट्स, और यदि कोई न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिनल प्लांट वैरायटी बॉटनिकल वैरायटी है, स्पीशीज है, इन दैट केसेस cultivation should be identified and documented as the source material used or described in traditional medicine of the original country। Next point, botanical identity। So हम लोग किसी भी प्लांट की कैसे हम लोग उसकी वैरायटी को आइडेंटिफाई करेंगे, तो जनरली हम लोग जो भी प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट सेलेक्ट करते हैं कल्टीवेशन का, उसका प्रॉपर जीनस, स्पीशीज, देयर सब स्पीशीज और वैरायटी, ठीक है, देयर फैमिली, ये हम लोग प्लांट के विषय में उसको लोग जानकारी लेते हैं। So scientific name of each medicinal plants under cultivation should be verified and recorded। जब भी हम लोग कोई प्लांट सेलेक्ट करते हैं, उस प्लांट को हम लोग जो भी हमारा नेशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, फार्माकोपिया होती है, उसको हम लोग साइंटिफिक नेम वगैरह सब लोग हम मैच करते हैं। एंड इफ अवेलेबल द लोकल एंड इंग्लिश कॉमन नेम शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, लोकली उसको पर्टिकुलर एरिया में नेम से जानते हैं, तो उसको हम लोकल नेम या इंग्लिश नेम भी हम लोग कंसीडर करेंगे। एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज द नेम ऑफ द कल्टीवेटर या कीमोटाइप और फिनोटाइप में आल्सो बी प्रोवाइडेड एज एप्रोप्रिएट। इसके अलावा उस प्लांट को और किस लोगों ने कल्टीवेट किया है, कल्टीवेटर का नेम, ठीक है, उनका क्या कीमोटाइप है, इस तरीके से हम लोग उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिससे कि हम एक बार कंफर्म हो जाए बिफोर cultivation of the medicinal plants। Now specimen, in case of first registration in a producer's country of a medicinal plants or their reasonable doubt exists as to their identity of a botanical species, then a voucher specimen should be submitted to a regional or national herbarium for identification। Suppose यदि कोई हम लोग ऐसा मेडिसिनल प्लांट्स हम लोग
ग्रो कर रहे हैं, जिसके विषय में हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास डाटा नहीं है, तब उस केस में हम लोग जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, लाइक इन इंडिया में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NBRI, ठीक है, उधर पे जाके हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई करा सकते हैं, उसका वाउचर स्पेसिमेन भी हम लोग उधर पे उसको फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। Apart from identification, if possible, a genetic pattern should be compared to that of an authentic specimen. इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन के अलावा हम लोग जो प्रत्येक प्लांट का अपना एक जेनेटिक पैटर्न होता है, फिंगरप्रिंटिंग प्रोफाइल होती है, ठीक है, DNA फिंगर होता है, उससे भी हम उसको कंपेयर करना चाहिए। एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ द बॉटनिकल आइडेंटिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द रजिस्ट्रेशन फाइल, और उसका जो बॉटनिकल आइडेंटिटी है ये सब एक रजिस्ट्रेशन फाइल में चाहिए, उनमें सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली करना चाहिए, जो भी हम लोग स्पीशीज वगैरह जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट की। नाउ सीड एंड अदर प्रोपगेशन मटेरियल, जब हम लोग प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं तो हम या तो थ्रू सीड के द्वारा करेंगे या फिर थ्रू अदर मींस के द्वारा करेंगे, कटिंग वगैरह के द्वारा, ठीक है। सो जनरली वी प्रोपगेट द प्लांट थ्रू द सीड। So seed and other propagation material should be specified, and the suppliers material should provide all the necessary information relating to their identity, quality and performance of their product, as well as their breeding history and quality. जब भी हम लोग कोई प्लांट मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं फॉर देयर कल्टीवेशन, प्रोपगेशन मटेरियल को, सपोज करिए यदि हम किसी भी प्लांट को ग्रो कराना चाह रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को, और उसको हम लोग सीड के द्वारा उसको प्रोपगेट कराते हैं, तो उस सीड के विषय में उसकी हमारे पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका क्या यील्ड आएगा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये चीजें पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए। जब भी हम लोग मार्केट से कोई भी सीड परचेज करेंगे कल्टीवेशन के लिए मेडिसिनल प्लांट के, तो उस सीड के विषय में उसका प्रॉपर डाटा होना चाहिए, ठीक है, कि इस सीट के लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, क्या क्या हमको मेजर्स लेने हैं, ठीक है, इसके बाद क्या इसकी यील्ड होती है, तो ये सब चीजें प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जहां से भी हम लोग परचेज करते हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो भी डाटा है वो हमको लेना चाहिए। एंड द प्रोपगेशन और प्लांटिंग मटेरियल शुड बी ऑफ द एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम ऑफ द एनी कंटामिनेशन और एनी टाइप ऑफ द डिजीज। जब भी हम लोग कोई भी प्रोपगेशन मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, लाइक सीड वगैरह, तो उसके लिए ये देखेंगे कि जो हमने सीड सिलेक्ट की है वो प्रॉपर हेल्दी सीड है या नहीं है, ठीक है, किसी टाइप का उसमें कंटामिनेशन या इनएप्रोप्रिएट क्वालिटी तो नहीं है, ये सब चीजें और देखेंगे सीड हेल्दी वगैरह है कि नहीं है। एंड द प्लांटिंग मटेरियल शुड प्रेफरेबली बी रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। और इसके अलावा हम लोग जो सीड, आज के समय बहुत सारे ऐसे सीड्स आते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंट होते हैं बहुत सारी डिजीज के लिए, तो हम लोग इस तरीके से सीड भी सेलेक्ट करने हैं कि वो रेजिस्टेंट हो या टॉलरेंटेबल हो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से। एंड द सीड एंड अदर प्रोपगेशन मटेरियल शुड बी सर्टिफाइड एज originally derived, and substandard and adulterated propagation material should be avoided। किसी भी टाइप का हमको सब स्टैंडर्ड या एडल्टेटेड जो भी सीड मटेरियल है, ठीक है, प्रोपगेशन के लिए उसको अवॉइड करना चाहिए। बाद आफ्टर कल्टीवेशन के बाद हमको जो भी यील्ड मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, गुड क्वालिटी की नहीं होगी। नाउ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, हम किसी मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस के साथ उसका हमको प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट करना पड़ता है। समय समय पे क्या क्या चीजें होती हैं कल्टीवेशन में, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर उसको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, ये प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है जब भी हम लोग किसी मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं। एंड द कंडीशन एंड ड्यूरेशन ऑफ कल्टीवेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल रिक्वायर्ड। और यदि हमको गुड क्वालिटी की हमको यील्ड चाहिए, तब हमको उसको प्रॉपर जो कल्टीवेशंस की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जो गाइडलाइंस है उनको हमको फॉलो करनी होती है, उसके क्या कंडीशंस होते हैं वो हमको फॉलो करते हैं। इट आल्सो डिपेंड अपॉन दी quality of medicinal plant material. If no scientific or published documents for the cultivation of the particular plant material are not available,
देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन शुड बी फॉलो। सपोज करिए किसी प्लांट की खेती के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, कैसे हम लोग प्लांट्स का कितना इरिगेशन करना है, कितना हमको उसको फर्टिलाइजर समय समय प्रोवाइड करना है, कटिंग वगैरह हमको करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर जब हमारे पास एसओपी नहीं होती तब हम लोग जो भी ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं पहले लोग उसको खेती की है क्या क्या उसके लिए मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं यदि हमारे पास साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट रोटेशन ऑफ प्लांट शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट सुटेबिलिटी। इसके अलावा जो भी हम लोग प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं, जनरली हम लोग रोटेशन ऑफ प्लांट का जो मेथड होता है, ठीक है, एक खेती के बाद फिर हम लोग दूसरी खेती करते हैं, सेम खेती नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से रोटेशन ऑफ प्लांट शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट सुटेबिलिटी, क्योंकि हर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स का अपना एक सुटेबल वेदर होता है, अपने सुटेबल कंडीशंस होती है, तो सुटेबल फेवरेबल कंडीशन में ही प्लांट्स का कल्टीवेशन करना चाहिए। नाउ साइट सिलेक्शन। Medicinal plant material that are derived from the same species can show significant difference in their quality when cultivated at different sites. जनरली क्या होता है कि जब हम लोग सेम स्पीसीज के प्लांट को अलग अलग जगह ग्रो कराते हैं तो वो अलग अलग यील्ड देता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स। क्योंकि क्या होता है, सपोज करिए हम एक मेडिसिनल प्लांट, एक ही स्पीसीज के मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट में ग्रो कराते हैं, एक पर्टिकुलर दूसरे स्टेट में ग्रो कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, यील्ड में चेंज डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि जितनी भी कल्टीवेशन लोग करते हैं मेडिसिनल प्लांट का, सबकी अपनी एक फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, अपने एक फेवरेबल वेदर और फेवरेबल रेनफॉल या फेवरेबल सॉइल्स होती हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इट गिव द गुड यील्ड। सो दीज डिफरेंसेस may relate to physical appearance or to variation in their constituents। और जो ये वेरिएशंस आता है, ये वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, जो प्लांट के यील्ड में भी हो सकता है। इससे हम लोग जो प्लांट्स के कल्टीवेशन करने के बाद, जो हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे, उसके यील्ड में भी चेंज हो सकता है, या उसके फिजिकल अपीयरेंस में भी कि प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुआ, ठीक है, और प्रॉपर्ली ग्रो हुआ है तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वेरिएशंस आ रहा है। तो साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल, एयर और वाटर बाय हैजार्डस केमिकल्स शुड बी अवॉइडेड। और जल्दी हम लोग जब भी कल्टीवेशन करते हैं, मतलब प्लांट्स को हम लोग देखते हैं कि कोई इस तरीके का अदर कोई पॉल्यूटेंट तो नहीं है, या एयर से पॉल्यूशन तो नहीं है जो हमारे कल्टीवेशन को अफेक्ट करे, इसलिए वो साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट लैंड यूज ऑन द कल्टीवेशन साइट including the planting of previous crop and any application of plant protection product should be evaluated। So जब भी हम लोग प्रॉपर कल्टीवेशन करने के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि इससे पहले उस प्लांट में कल्टीवेशन करने से पहले, इससे पहले किस प्लांट का कल्टीवेशन किया गया था, क्या कोई प्लांटिंग प्रिवेंशन प्रीवियस क्रॉप के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन अप्लाई किया गया, किस टाइप के उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए गए थे, ऐसे क्या कोई, ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कंडीशंस before cultivation of the medicinal plants. Now climate. Climatic conditions like the length of day, rainfall, field temperature significantly influence the physical, chemical and biological quality of medicinal plant. Climate factor बहुत important point है। जब भी हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो कल्टीवेशन करते समय हमारे जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जो एसओपी है, हम लोग कहते हैं मोनोग्राफ है, ठीक है, कि यदि हमको पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की खेती करनी है तो उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिए हमको कितनी लाइट चाहिए, कितनी टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग चेक करते हैं, और उसी क्लाइमेट में, जिस क्लाइमेट में फेवरेबल होता है प्लांट, उसी क्लाइमेट में हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं। सो और सपोज करिए यदि उसको प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिल पाता है तो स्वाभाविक उसके फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर इंक्लूडिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम टेम्परेचर डिफरेंसेस आल्सो इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। तो यदि प्रॉपर प्लांट्स को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है उसकी जो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज रिएक्शंस होते हैं वो अफेक्टेड होंगे।
सो इस जब भी हम लोग प्रॉपर कल्टीवेशन करते हैं तो ये सब चीज को हमको प्रॉपर नॉलेज अपने में रखना पड़ेगा कि क्या क्या पर्टिकुलर प्लांट्स को रिक्वायरमेंट्स है। नाउ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट, cultivation of medicinal plants may affect the ecological balance. Ecological means equilibrium between the living organism as well as their environments. May affect the ecological balance and in particular the genetic diversity of the flora and fauna in surrounding habitats. जब भी हम लोग किसी प्लांट कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग अपने कंसीडर करेंगे किसी टाइप का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो और उससे किसी टाइप का जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, सराउंडिंग एरिया तो वो अफेक्ट ना हो। एंड द क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय अदर प्लांट और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अलावा जब भी हम लोग अपने मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि उधर पे और कल्टीवेशन के अलावा ऐसे कोई प्लांट्स तो नहीं है या ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ऐसी कोई ह्यूमन एक्टिविटीज तो नहीं होती है जिससे हमारे medicinal plants cultivation affected. The introduction of non-indigenous medicinal plant species into cultivation may have detrimental impact on the biological और ecological balance of the region. और यदि हम कोई ऐसा प्लांट जो नॉन इंडिजिनस है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का नहीं है और उस पर्टिकुलर एरिया में उसको हम लोग यदि ग्रो कराते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसका कोई डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल बैलेंस में। तो ये चीज हम लोग कंसीडर करते हैं। एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ कल्टीवेशन एक्टिविटीज शुड बी मॉनिटर्ड ओवर द टाइम या प्रैक्टिकल। नाउ द सोशल इंपैक्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन लोकल कम्युनिटीज शुड बी आल्सो एग्जामिन्ड टू इंश्योर दैट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द लोकल लाइवलीहुड आर अवॉइडेड। तो उस पर्टिकुलर खेती से, ठीक है, हम लोग सोशल इंपैक्ट देखते हैं कि उधर की जो लोकल कम्युनिटीज है जिस उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की खेती से, ठीक है, वो बेनिफिटेड हों। In terms of local income earning opportunity, small scale cultivation is often preferable to large scale production. In particular, if small scale farmers are organized to market their product jointly. Now, next point is the soil. The soil should contain appropriate amount of nutrients, organic matter, and other elements to ensure the optimal plant growth and quality. हम लोग सभी लोग जानते हैं जो सॉइल्स होती हैं, ठीक है, सॉइल्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह होते हैं और जो भी एलिमेंट्स जो प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो होने के लिए चाहिए वो सभी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए सॉइल में। सो ऑप्टिमल सॉइल कंडीशंस, इसके अलावा जो ऑप्टिमल सॉइल कंडीशंस होती हैं पर्टिकुलर मिक्सर प्लांट्स की, किस टाइप की सॉइल टाइप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी अपनी रेड सॉइल्स होती है, रेड सॉइल, लोबी सॉइल, ग्रेवल सॉइल, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए सॉइल में। बहुत सारे ऐसे मिक्सर प्लांट का कल्टीवेशन जब तक यदि उसमें वाटर लॉक हो जाएगा, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो हमारी जो मिक्सर प्लांट का खेती है वो खराब हो जाएगी। उधर का मॉइस्चर रिटेंशन कैसा है, फर्टिलिटी कैसी है सॉइल की, पर्टिकुलर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं एल्कलाइन पीएच डिपेंडेंट होते हैं सॉइल, यदि एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, तो पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज जो होती है वो अफेक्टेड होती है। तो इन सभी चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं जब भी हम लोग कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। तो उसका प्रॉपर जो मोनोग्राफ होता है वो प्रॉपर मोनोग्राफ से हम उसको चेक करते हैं कि पर्टिकुलर हमारे प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस टाइप की सॉइल चाहिए, कैसा पीएच होना चाहिए, ड्रेनेज कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कैसा होना चाहिए। सो जो भी हम लोग टारगेटेड मेडिसिनल प्लांट्स का जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो ये सब चीजें उस पर्टिकुलर प्लांट की कल्टीवेशन से पहले हमको कंसीडर करनी होती है। इसके अलावा also to ensure that correct type and their quantities of the particular fertilizers that are used through agriculture research. In practice generally organic and chemical fertilizers are used. जनरली हम लोग जो भी अपने एग्रीकल्चर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं हम लोग ये देखते हैं एसओपी जो होती है उसमें चेक करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट्स खेती के लिए किस टाइप का फर्टिलाइजर्स किस किस ड्यूरेशन में किस क्वांटिटी में, ठीक है, हमको अप्लाई करना है। ये सब चीजें हम लोग चेक करते हैं किस टाइप का हमको फर्टिलाइजर्स उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में और किस किस समय में। So chemical fertilizers that have been approved by the
ट्रीज ऑफ कल्टीवेशन एंड कंजप्शन शुड बी यूज्ड। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर कंट्री में भी किस टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या कहते हैं अप्रूव्ड है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए अप्लाई करते हैं। ऑल फर्टिलाइजर एजेंट शुड बी अप्लाइड स्प्रिंगली and in accordance with the need of the particular medicinal plant species and supporting capacity of the soil। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने प्लांट्स को ज्यादा ग्रो कराने के लिए, ठीक है, जल्दी ग्रो हो जाए, हेल्दी ग्रो हो जाए, तो हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में हम लोग फर्टिलाइजर्स इस तरीके से कर देंगे। जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस है, ठीक है, उसको हम लोग उस प्रॉपर गाइडलाइन के साथ कितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट्स खेती में। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन सच मैनर एज टू मिनिमाइज, और कोशिश करते हैं कि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कम से कम अप्लाई करें। हम सब लोग जानते हैं केमिकल्स अप्लाई करने से जो हमारी सॉइल्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी खराब होती है। नाउ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। Irrigation and drainage should be controlled and carried out in accordance with the need of the individual medicinal plant species during its various stages of growth। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरिगेशन और उसका प्रॉपर ड्रेनेज। पर्टिकुलर प्लांट्स को हम कितना इरिगेशन देना है, कितनी सिंचाई करनी, कितना वाटर देना है, ठीक है, किस किस समय में कितनी क्वांटिटी में वाटर देना है, ये भी हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारी फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है उसके तहत हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, नेशनल मोनोग्राफ है या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कितनी टाइम्स और कितनी क्वांटिटी में, कब कब हमको ड्यूरेशन में, किस स्टेज में हमको इरिगेशन देना है, उसका क्या प्रॉपर ड्रेनेज रखना है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग पानी हमने दे दिया और पूरी खेती में पानी भर गया, ठीक है, वाटर लॉक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। एंड वाटर दैट्स आर यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस शुड कंप्लाई विद द लोकल और रीजनल और नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। एंड द केयर शुड बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट प्लांट अंडर कल्टीवेशन आर नाइदर ओवर नॉर अंडर वाटर। तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज irrigation system. Now plant maintenance and production. Plant maintenance and production. Timely application of measures such as the topping, budding, pruning, and setting may be used to control the growth and development of the plant, thereby improving the quality and quantity of the plant. जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हम लोग प्रॉपर की प्लांट्स की प्रॉपर कटिंग वगैरह करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, जिससे प्लांट सपोज करिए हमको प्लांट्स के लीफ पार्ट इस्तेमाल करना है, तो जल्दी हम लोग क्या करते हैं स्टेज के बाद, ड्यूरेशन के बाद हम लोग प्लांट्स की जो ब्रांचेज होती हैं ऊपर अपर साइड को, उसको हम लोग फ्लावरिंग टाप्स वगैरह कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट्स ज्यादा आपका फैलता है, ज्यादा ग्रो होता है। मेनली हमको लीफ कलेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके से क्या प्लांट के पार्ट की रिक्वायरमेंट है समय समय। इसके अलावा उसको शेडिंग वगैरह यदि हमको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग प्लांट का मेंटेनेंस समय समय पे जो भी एज पर एसओपी के तहत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के गाइडलाइंस के तहत हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक्स, एनी एग्रोकेमिकल्स दैट आर यूज्ड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ और टू प्रोटेक्ट मेडिसिनल प्लांट शुड बी केप्ट टू मिनिमम एंड अप्लाइड ओनली व्हेन नो अल्टरनेटिव मेजर्स आर अवेलेबल। जल्दी हम लोग जो भी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, या फिर हम लोग कोई अगर प्रोटेक्ट मेडिसिन प्लांट्स करने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो वो मिनिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर इसके अलावा यदि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव टूल्स नहीं है, तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड्स है, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। And when necessary, only approved pesticide and herbicide should be applied at the minimum effective level and in accordance with the labeling we package insert instruction of the individual product। इसके अलावा जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में वो मिनिमम क्वांटिटी में और लो कंसंट्रेशन में जितना प्रिस्क्राइब्ड है इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड की जो प्रोवाइडेड मैटर्स है, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस होती है लीफलेट में, उसको हम लोग फॉलो करना होता है, ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए क्या करते हैं पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड वेयर एप्रोप्रिएट and only qualified staff using approved equipment should be carry out pesticide and herbicide application
एंड ऑल एप्लीकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी हम लोग को मेडिसिन प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है उसको हमें प्रॉपरली क्वालिफाइड स्टॉक के द्वारा और जो भी इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट है, ठीक है, जो प्रॉपरली तो स्प्रे कर सके या जो भी इक्विपमेंट है उनसे हमको अब इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। और कौन सा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किस समय इस्तेमाल किया गया, किस कंसंट्रेशन में, ये सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। द मिनिमम इंटरवल बिटवीन सच ट्रीटमेंट एंड हार्वेस्ट शुड बी कंसिस्टेंट with the labeling and packaging instruction of the non-production product, and such treatment should be carried out in consultation and with by agreement of the buyer of the medicinal plants or medicinal plant material। इसके अलावा जो भी हम लोग medicinal plant की खेती करते हैं और यदि हमारा एग्रीमेंट है किसी बायर्स के साथ, तो उस बायर्स की अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या गाइडलाइंस है, किस टाइप का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसके कंसल्टेशन के साथ हमको भी समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनरली कोशिश करते हैं कि हम लोग जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो मिनिमम क्वांटिटी में लो कंसंट्रेशन और एज पर क्या करते हैं एसओपी के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ हार्वेस्ट। So medicinal plants should be harvested during the optimal season or the time period to ensure the production of medicinal plant material and best product of the best possible quality। जनरली जितने मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी सबका एक अपना सुटेबल हार्वेस्टिंग टाइम होता है, ऑप्टिमल सीजन्स होता है। उसी सीजन में हम लोग प्लांट्स को हार्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम क्वांटिटी में जो उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उस सीजन्स में पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब्ड सीजन होता है तो उसमें उसको ऑप्टिम कर सकते हैं। एंड द टाइम ऑफ हार्वेस्ट डिपेंड ऑन द प्लांट पार्ट टू बी यूज्ड। Detailed information concerning the appropriate time of harvest is often available in National Pharmacopoeia or other relevant approved scientific books। जनरली हम लोग जो भी प्लांट्स की खेती करते हैं मछली प्लांट्स की वो उसके रिगार्डिंग हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग उसमें मेंशन रहता है कि पर्टिकुलर प्लांट सपोज कोई मेडिसिन प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं तो उस मेडिसिन प्लांट्स को ग्रो कराने के बाद उसको किस सीजन्स में उसको हार्वेस्ट करना है और कौन सा टाइम सेलेक्ट करना है, इवनिंग में या नून में या मॉर्निंग में, ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये सभी चीजें क्या कहते हैं जनरली बहुत सारी नेशनल फार्माकोपिया बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती है जिसमें हमको मिल जाएगा। साइंटिफिक डाटा अवेलेबल होता है उनमें सभी में और उसी साइंटिफिक डाटा को हमको फॉलो करते हुए अपने मेडिसिनल प्लांट का हार्वेस्ट करना चाहिए। The best time for harvest should be determined according to the quality and quantity of biologically active constituents। क्योंकि हम जब भी प्लांट्स का हार्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या रहे वो गुड रहे, ठीक है। During harvest, care should be taken to ensure that no foreign matter or any type of the weed or toxic plant are mixed and with the harvested medicinal plant material। जब भी हम लोग प्लांट मटेरियल हार्वेस्ट करते हैं तो जितने उसमें किसी टाइप का कोई भी टॉक्सिक प्लांट मींस उधर कोई भी पर्टिकुलर वीड्स वगैरह उसमें मिक्स ना हो या कोई अदर टाइप का फॉरेन मैटर ना उसमें मिक्स हो। एंड द medicinal plants should be harvested under the best possible conditions avoiding dew, rain or excessively high humidity। तो यानी हम लोग medicinal plants का जब भी हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग देखेंगे कि कोई इस तरीके का एनवायरनमेंट तो नहीं है जो अफेक्ट कर सकता है हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस पर्टिकुलर मेडिसिन प्लांट को। तो जनरली हम लोग ड्यू, रेन और हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में अवॉइड करते हैं हार्वेस्टिंग। इफ हार्वेस्टिंग ऑकर्स इन वेट कंडीशन then the harvested material should be transported immediately to an indoor drying facility to expedite the drying so as to prevent any possible deleterious effect due to the increased moisture level which promote the microbial fermentation or mold। तो जल्दी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं यहाँ पर वेट कंडीशंस रहता है, यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। सो इन सच केसेस में यदि उसमें पर्टिकुलर एरिया में जैसे वेट एरियाज में कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स का और कल्टीवेशन करने के बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हम लोग उस हार्वेस्टेड मटेरियल को तुरंत हम लोग उस पर्टिकुलर ड्राई एरिया में लाते हैं, प्रोसेसिंग एरिया में लाते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपर्ली उसको ड्राई कर सकते हैं। क्योंकि यदि उसमें ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो देयर में भी चांस ऑफ द
utilization of their biochemical constituents, or they will be chance to promote the microbial fermentation. They should be stored in an uncontaminated and dry place, or free from any type of the area that should be free from the insect related bird and pest also. सो जब भी हम लोग प्लांट मटेरियल को हार्वेस्ट करने के बाद उसको जब हम प्रॉपर स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज कंडीशंस या स्टोरेज कंडीशंस का जो स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है, वो प्रॉपरली इस तरीके से होना चाहिए कि किसी टाइप का रोडेंट या किसी टाइप का इंसेक्ट, ठीक है, या बर्ड वगैरह उस पर्टिकुलर क्रॉप को कंटेमिनेट ना करे. The harvested raw medicinal plant material should be transported promptly into clean and dry conditions. So, all containers that are used at harvest should be kept clean and free from any type of the contamination by previously harvested medicinal plants in other foreign materials. जो भी लोग एंटीना इस्तेमाल करेंगे वो ड्राई होना चाहिए, और इससे पहले हार्वेस्टिंग के लिए जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कंटेनर वो पूरी तरीके से उससे फ्री हो, किसी टाइप से उसमें contamination ना हो. And the decomposed medicinal plant material should be identified and discarded during harvesting. और यदि कोई भी decomposed या कोई भी इस तरह का प्लांट मटेरियल है, ठीक है, जो ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं. And the post harvest inspection and processing in order to avoid microbial contamination and loss of the product quality. Now personal care, growers and producers should have adequate knowledge of the medicinal plant concerned. जब भी हम लोग कोई भी प्लांट्स की खेती करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की खेती करने वाले जो भी पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की खेती में सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए. एंड दिस शुड इंक्लूड बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन, उसका प्रॉपर बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन के विषय में नॉलेज होना चाहिए, क्या कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन करनी है, लाइक किस टाइप की सॉइल, पीएच, फर्टिलिटी और प्लांटिंग की स्पेस कितनी रखनी है, क्या लाइट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या इरिगेशन, फर्टिलाइजर किस टाइप होनी चाहिए, ये सभी चीजें क्या कहते हैं दिमाग में होना चाहिए. All personnel, including field worker, involved in the propagation, cultivation, harvest, and post-harvest processing stage of the plant production should maintain appropriate personal hygiene. तो इन सभी टेक्निक्स के दौरान जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं कल्टीवेशन में, उनको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए एंड शुड हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग रिगार्डिंग देयर हाइजीनिक रिस्पांसिबिलिटी आल्सो. Only properly trained personnel that wearing the appropriate protective clothing such as gloves, goggles, face mask should apply agrochemical. जब भी इस एग्रोकेमिकल्स की तरह हम अप्लाई करते हैं तो जो भी फील्ड पर्सनल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, जब एग्रोकेमिकल अप्लाई करते हैं तो अपने प्रॉपर्टी सेफ रखना चाहिए. ग्लव्स, हेलमेट और फेस मास्क वगैरह उनको वियर करना चाहिए स्प्रे करते समय, insecticide या pesticides या fertilizers. Growers and producers should receive instruction on all issues relevant to the production of environment, conservation of medicinal plant species and proper agriculture. So जितने भी growers या producers मेडिसिनल प्लांट्स के, ठीक है, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट की खेती के समय जो भी हमारा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो मिनिमम क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल करें, और हमारा जो कंजर्वेशन हो रहा है मेडिसिनल प्लांट्स स्पीशीज को प्रॉपर्ली हो, ठीक है, और इस तरीके से हम जो प्लांट्स ग्रो कराते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जो एसओपीज होती है, जो गाइडलाइंस के तहत, तो इट गिव द गुड yield. So these about the good agriculture practices of the cultivation of medicinal plants.